Is there, Maharaj, a theory of accumulation of karma? We say, do good deeds like a bank account and don't do bad deeds. Is there a theory like that? There's, we in the East believe in the theory of karma. The theory of karma says, it's just like the third law of physics. The third law of physics says for every action there's a reaction. So theory of karma says for every thought, word and deed we are held accountable. When we have good thoughts and good words and good deeds, then we are rewarded. When we have bad thoughts and bad words and bad deeds, then we are punished. And so we have to pay for what we do. But as long as we have karma, whether it's good or bad, we have to come back into the world to reap it. So the key is to get to a state of ne karma, where no karma is created. Because let's say you did a good deed to someone. So to reap the rewards, you have to come back either in this lifetime or another lifetime to reap the reward. And let's say it's not taken care of in this lifetime, that means you're still on the wheel of transmigration. And the purpose of being in this human body is to get off the wheel of transmigration. So in the Santmat traditions, what is talked about is to try to take care of all your karma in this very lifetime and spend as much time into those activities which don't create karma. See, karma comes with thought, words and deeds. So when you meditate, if you're meditating properly, you should not have any thoughts. You're not speaking anything. You're not doing any physical. So that's the time of ne karma. Okay. When you go to satsang and your attention is in your saint or in the master, then all of your attention is there. So you have no thoughts, no words, and no. That's the time of ne karma. And it's said that when you do good things, but you don't attribute them to yourself, you attribute them to God, then no karma is created for that also, because you are not the doer and you understand that doer is the Lord. And so those are states which don't create any karma. And as we have more and more of that happening, then the karma which is associated with our soul is slowly burn off. Okay. Maharaji, this is really fascinating, this theory of ne karma and how we can achieve that. We'll discuss this, and of course a simple meditative technique as to how can we implement this in our lives. Right now, I'm sorry, we need to go in for another commercial break. हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. हमारे कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है. हम बात कर रहे हैं संत राजेंद्र सिंह जी महाराज से, जो एक जाने माने स्पिरिचुअल लीडर है. महाराज जी, आजकल की जिंदगी एक परफॉर्मेंस एंजाइटी टाइप ऑफ जिंदगी है. फेम चाहिए, फॉर्चून चाहिए, पैसा चाहिए लोगों को. और आपने बोला कि ने कर्मा, कोई कर्मा नहीं करो, मेडिटेशन करो. तो इस परफॉर्मेंस एंजाइटी को दूर भगाने के लिए कुछ मेडिटेटिव टेक्निक. एक जो बहुत आसान तरीका है मेडिटेशन करने का, जो कि कोई भी इंसान कर सकता है, वो है कि हम एक शांत जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा. हमने देखना है कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की और स्पर्श की, वो हमारा ध्यान बाहर लेके जाते हैं, उनको हमने अंदर की ओर करना है. तो जब हम शांत जगह ढूंढते हैं जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, तो सुनने की इंद्रिय आसानी से खिंच जाती है. जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठे, हालांकि एक से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं इकट्ठे एक ही जगह पर, ये देखना कि हमारी बॉडी का कोई हिस्सा किसी को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिलेंगे तो हम भी हिल जाएंगे, तो स्पर्श की इंद्रिय बाहर की ओर खींचेगी. फिर जब हम अभ्यास के लिए बैठेंगे तो हम खाएं पिए नहीं, तो चखने की इंद्रिय भी अंदर को खिंच गई. और जब अभ्यास कर रहे हैं तो कुछ एरिया को बदलने की ज़रूरत नहीं. कई लोग सोचते हैं अगरबत्ती जलाना या स्पिरिचुअल करना किसी रीजन को, उसकी ज़रूरत नहीं. हम सोचते हैं कि प्रभु ने सारी धरती बनाई है, सारी होली है, सब अच्छी है जगह, तो जहाँ पे हम बैठे वहाँ एटमोसफेयर बदल लेना, ताकि सूंघने की इंद्री भी खिंच जाए अंदर को, और आंखें बंद करेंगे तो देखने की भी इंद्री खिंच जाएगी. अब जब आंखें बंद करें तो ये ज़रूरी है कि जो आई बॉल्स हैं, आंखों के डिले सीधे सामने होने चाहिए. बहुत से लोग सोचते हैं कि शिव नेत्र यहाँ है, वो कोशिश करते हैं आंखों के डेलों को उठाने की, मगर हम इनको अगर उठाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माथे पे जोर पड़ेगा और हमें सिर दर्द हो जाएगा. तो हमें अपनी आईबॉल्स को एकदम सीधा सामने रखना है, और आंखें बंद करते ही होगा क्या कि हमें कोई ना कोई विचार आएगा जो कि हमें मेडिटेट करने से रोक देगा, ध्यान टिकाने से रोकेगा. तो हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, क्योंकि जो विचार आते हैं और मन से आते हैं, तो हम मन ही मन में प्रभु के नाम का जाप करते हैं. हम प्रभु को जानना चाहते हैं, उनकी नज़दीकी पाना चाहते हैं, तो जो भी प्रभु के जाति नाम हमको ठीक लगे उसका हम मन ही मन जाप कर सकते हैं. जब मन से उनका जाप करेंगे तो क्या होगा कि हमारा मन उस जाप में लग जाएगा और विचार नहीं आएगा. और जब वो स्टेट आएगी कि जहाँ बाहर से इंद्रियां सब अंदर की ओर हैं और विचार नहीं आ रहा, तो अंधेरे में हमें रोशनी के चिन्ह दिखेंगे. शुरू में ऐसा लगता है जैसे पिन पॉइंट्स ऑफ लाइट्स है, रोशनी आगे जा रही है. रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है,
सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल रंग की, पीला, हरा, जामुनी, कुछ भी हो सकता है। और जो भी हमें दिखता है उसके हम बीच में देखें, जब पूरा ध्यान बीच में लगाएं तो आस्ते आस्ते रोशनियाँ टिकनी शुरू हो जाएंगी। तो हो क्या रहा है कि रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, रोशनी हमारे अंदर है। जब हमारा ध्यान टिकता है रोशनी हमें दिखाई देती है, जब ध्यान टूट जाता है हमें अंधेरा दिखता है। और समय के साथ जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती चल जाती है, हमें लगता है रोशनियाँ ज़्यादा जैसे टिकी हुई हैं, और फिर हम उनसे आगे निकल जाते हैं कि आसमान, उसमें सितारे, चंद्रमा, सूर्य, और जब उनका हम अनुभव करते हैं तो हमें एक कामनेस, एक शांति की स्टेट आनी शुरू हो जाती है, जिससे कि जब हम अभ्यास करके उठते हैं तो वो जो खुशी और आनंद हमें मिला वो सिर्फ उस समय के लिए नहीं रहता, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे साथ रहता है, ताकि जो बाकी का हमारा दिन है बड़े आराम से गुजरता है। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है जो कि कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। बिल्कुल। महाराज जी, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी पे बड़े सवाल उठते हैं कि ये दोनों अलग हैं, लोग बोलते हैं एक है, इनका रिश्ता क्या है आपस में? रिलीजन को अगर अंडरस्टैंड करें तो इसका जो ये इट केम फ्रॉम रोमन टाइम से, इटालियन वर्ड है, उसका मीनिंग है टू बाइंड बैक टू गॉड, जो चीज़ हमें प्रभु के साथ जोड़े। अब रिलीजन के जैसे मैं पहले कहा था, दो एस्पेक्ट्स हैं, एक बाहरी और एक अंदरूनी। जो अंदरूनी एस्पेक्ट है वो रूहानियत की, वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, और जो बाहर का एस्पेक्ट है जिसमें कि हम राइट्स और रिचुअल्स करते हैं, वो सबका अलग अलग है। लेकिन एक्चुअली में हर एक रिलीजन हमें चाहता है कि हम पिता परमेश्वर से मिलें और रूह की उड़ान करें, ताकि रूह का मिलाप परमात्मा में हो। तो वो जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, वो जो इनर साइड है रिलीजन की, वो है। तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सी बार हम लोग सिर्फ बाहर की चीज़ों में रह जाते हैं, अंदर क्या उसको भूल जाते हैं। ओके, रिचुअल शुरू हो जाते हैं। मैं एक कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगती है सुनानी। बिल्कुल। उसमें क्या है कि एक स्वामी जी थे जी। वो एक प्लेस ऑफ वर्शिप के पास सत्संग किया करते थे। तो जब सत्संग किया करते थे तो एक बिल्ली आती थी, बिल्ली शोर मचाती थी। तो सब सेवादार ने कहा कि बिल्ली को दूर बांध के आया करो। तो उन्होंने बिल्ली को दूर बांधना शुरू कर दिया ताकि उस वक्त शोरगुल ना हो। जैसे समय गुजरा, उस स्वामी जी की डेथ हो गई। एक नए स्वामी जी आ गए, वहाँ पर पाठ पूजा करते थे, वो सत्संग करते थे। उतनी देर में सेवादास की भी डेथ हो गई। तो अब जब नए आए, उतनी देर में बिल्ली की डेथ हो गई। तो उन्होंने नई बिल्ली लगानी शुरू कर दी, और ऐसे रिचुअल्स बनते हैं क्योंकि उनको लगा कि पुराने टाइम से जब तक बिल्ली बंधेगी नहीं तब तक सत्संग शुरू नहीं होगा। तो रिचुअल्स ऐसे ही बनते हैं, हम भूल जाते हैं कि रीजन क्या था। ब्लाइंडली वी कीप ऑन फॉलोइंग देम। सो वी नीड टू नो कि पर्पस क्या है। यू नो, rituals are good, there's nothing wrong with them, but we need to know what the purpose is. And if we only stay looking at the outer side and we don't really understand why we are doing something, then we're not going to gain anything. So just spirituality, that is really experiencing our religions and our faith, and not just doing blindly. Like in some places we light the candle, some place we put some instruments on, some places we do some other thing, or ring the bell, or do other things. They're all good, there's nothing wrong with that. They remind us of God if we know that. But if we only do that but we've not changed ourselves, we've not gone why do we ring a bell? Because they want us to listen to the voice of the Lord within ourselves. Why do we light up a light? Because they want us to see the light of God within. तो वो तो एस्पेक्ट हम करते नहीं, हम सोचते हमने बत्ती जला दी, हमने घंटी बजा दी, काम हो गया। सो वी नीड टू गेट टू अ स्टेट ताकि हम अंडरस्टैंड करें कि किस लिए स्थापित हुए थे, व्हाई वर दे पुट इन देयर, एंड देन understand कि most of these are just outer symbols for something which was spiritual in the beginning, but with time that gets lost, and so spirituality is just the inner side of the religion. Another thing, Maharaj ji, why are we so scared of diversity? ये जो धर्म जो सब एक चीज बोलते हैं बांधने के लिए हमें, हम लोगों को लड़ाता क्यों है, अलग अलग क्यों करता है? वो बहुत सी बारी many times what happens is कि we just feel कि whatever we thinking is right. हम सोचते हैं जो हमने सोच लिया, जो हमने बोल दिया, जो हमने कर दिया वही सच्चा है, वही ठीक है, बाकी सब गलत है। हम ये समझ नहीं पाते कि अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग तरीके से सेम चीज़ की जा सकती है। इसीलिए हम लोग बिलीव करते हैं कि जब हम साइलेंस में बैठेंगे, शांत अवस्था में बैठेंगे, जब अंदर में हमें कुछ प्रभु के साथ कनेक्शन होगा तो हमें ये तो यकीन हो जाएगा हम सब एक हैं,
उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कलर ऑफ स्किन क्या है, कि हम पढ़े लिखे कितने हैं, कि हमारे पास पैसे कितने हैं. वी रियलाइज वी आर वन एंड द सेम. वंस दैट हैपन्स, then we can go beyond this. But as a human being, like we were talking before, there's always the fear of the unknown. We don't know the other person. तो हम सोचते हैं कि we are correct and that person must be wrong. तो one of the great things to do is to be able to take the time out to understand something else. अगर हम वो टाइम निकालेंगे, किसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे कि सब धर्म की बुनियाद एक ही है. और जब वो एक्सपीरियंस इंसान को हो जाए, फिर उसकी तरफ से सिर्फ प्यार ही सबकी ओर जाता है, उसकी तरफ से और खिंचाव नहीं जाता. जैसे आपने पहले कहा महाराज जी, और ये तभी दे सकते हैं जब थोड़ा हम चुप होंगे. मैं बिलीव करता हूँ कि जो टेक्निक ऑफ लिसनिंग है जी, वो हमको सीखनी है. तो वी ऑल नीड टू लर्न हाउ टू लिसन. वी ऑल वांट टू टॉक, क्योंकि इट बूस्ट आवर ईगो अप. वी फील वी नो अ लॉट, लेट मी टेल समवन एल्स व्हाट आई नो, एंड वी वेरी रेयरली listen to others. And also in a conversation, when someone is saying something, we come up very quickly with the answers, and so it hurts the person because maybe they wanted to say something else, but we have put our system into motion and said quickly. So today there are many books and there are many techniques of listening. So I think one of the great things one has to do is to learn the technique of listening, that you give a chance to someone else to say what they can, then we'll say commotion would be less and less and less. So सुनना और समझना बहुत जरूरी है. तो एक तो आपने हमें टिप दी, सुनना और समझना, और कुछ ऐसी 4-5 चीजें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिन चीजों को लागू कर सकें. मेरा ख्याल है सबसे जरूरी ये है कि जब इंसान सुबह उठता है तो प्रभु को याद करे, जिस फॉर्म में मर्जी याद करे. जी, पाठ करता है, पूजा करता है, प्रेयर्स करता है, मेडिटेट करता है, और उसका शुक्रिया अदा करे कि हे प्रभु, आपने मुझे ये जिंदगी दी है और मैं इसको सही तरीके से गुजार सकूं. जब हम प्रभु को याद करते हैं तो हम देखते हैं कि जिंदगी की आधी प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाती है इंसान की. तो एक चीज बहुत जरूरी है इसको याद करना. दूसरी चीज जो जरूरी है वो ये है कि वी नीड टू लिव इन द करंट मोमेंट. वी आर ऑलवेज लिविंग इन द पास्ट और द फ्यूचर. एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर ऑलवेज सेकंड गेसिंग आवरसेल्व्स. Did this happen? Could I have changed something? Why didn't someone do this? And so the current moment is like ticking a tick, and it's becoming the past. And if this moment is just sitting and just thinking about what happened in the future and the fear of the future like we were talking about, then this moment is gone. So living in the current moment is very important. And this is why it's called a present. Present means it's a gift of God. God has given us this moment. Let's enjoy it. So what is the best use of the current moment? To focus on God. Our purpose in being alive is to be one with God. So Sant Kirpal Singh Ji Maharaj would often say, he says, any deviation from God is a sin. So anything that we do that takes us away from God is bad. That's a good measure. Anything that we do that brings us to God is good. That's a good thumb rule. Yeah. So we need to do things that bring us closer to God. Yeah. And so when we remember God, that's what we need to do in the current moment. So मेरे ख्याल वो बहुत ज़रूरी है. जी. एक और चीज़ जो कि हमको मददगार हो सकती है वो ये है कि जब हम सारा दिन हम इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, घर के लोगों से, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, तो लेट अस नॉट बी क्रिटिकल. हम लोगों की गलतियां ना निकालें, उनकी पॉजिटिव साइड को देखें, क्योंकि हर एक में ज़रूर पॉजिटिव साइंस है, सबके अंदर पॉजिटिव साइंस है. अगर उनकी पॉजिटिव साइन को हम थोड़ा इन्हांस कर देंगे तो हम देखेंगे कि वो उनकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होगी. और हम हर वक्त यही क्रिटिसाइज करते रहें कि ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, तो देन वी क्रिएट एन एटमॉस्फेयर जहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है. सो वी नीड टू मेक आवर एटमॉस्फेयर मोर पॉजिटिव. तो अगर ध्यान पॉजिटिव चीज़ों की ओर देंगे तो ज़रूर चीज़ें अच्छी होंगी. आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स which could be helpful. महाराज जी, I have a personal question to ask you. कभी-कभी इतने सारे काम होते हैं करने के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ खुद के लिए, कुछ किसी और के लिए. वो कहते हैं ना, जैसे वो जगलर होता है ना, कितनी बॉल्स हवा में फेंको और कब पकड़ो, तो कभी समझ में नहीं आता कि कौन सा काम करें, कौन सा छोड़ दें. कोई थंब रूल है इसके लिए? मैं आपको एक स्टोरी से थंब रूल बता दूं. जी. दिस इज फ्रॉम द लाइफ ऑफ संत कृपाल सिंह जी महाराज. वो जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास की, उस वक्त मैट्रिकुलेशन वाज क्वाइट हाई एजुकेशन दोज डेज. जी. तो उनके सामने सवाल आया कि लाइफ में क्या करना है. उन्होंने काफ़ी समय निकाला,
उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट। हम लोग क्या करते हैं, इफ वी लुक एट हमने लेट्स से लिस्ट ऑफ आइटम्स टू टेक केयर बनाई हुई है, तो हम कहते हैं ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। प्रभु की ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम सोचते हैं ये बुजुर्गों का काम है। हम सोचते हैं जब बुजुर्ग हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब हमारे पास बहुत समय होगा। वी डोंट रियलाइज तब किस किस्म की प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाती हैं। तो द राइट टाइम टू नो गॉड इज नाउ। तो मेरे ख्याल जितने भी काम देख रहे हैं उसमें हम देखें, ये जो संबंध का रास्ता, ये नहीं कह रहा कि हम सब कुछ छोड़ के हम कहीं पहाड़ की चोटी पे चले जाएं, हम दरिया के किनारे पे बैठ जाएं। वी बिलीव इन व्हाट वी कॉल पॉजिटिव मिस्टिसिज्म। वी वांट टू एक्सेल इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, रियलाइजिंग कि ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। अगर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ ही खराब हो गई जी, अगर हमारा सोल को नरिशमेंट नहीं मिली, तो बॉडी और माइंड तो वैसे ही खराब हो जाएंगे। तो हमको अपने सोल के लिए कुछ करना है। अब रोजाना हम खाते क्यों? वी गेट अप, वी हैव ब्रेकफास्ट, वी हैव लंच, वी हैव इवनिंग टी, वी हैव डिनर। व्हाई? हमको लगता है नहीं खाएंगे तो बॉडी में तकलीफ होती है, लगता है भूख लगी, मैंने कुछ खाना है जी। अब सोल तो हमको बता नहीं ना पा रहा, वो किसको बताएगा? जो उस लेवल तक पहुंचेगा। हम उस लेवल तक पहुंचेंगे ही नहीं कि हमें पता लगे सोल को भी नीड है। तो सोल नीड्स टू बी नरिश्ड। उसकी नरिशमेंट क्या है? शब्द के साथ जुड़ना, ध्यान टिकाना, प्रभु को याद करना। तो अगर उस एस्पेक्ट को हम पहले करें, एंड वी बिलीव कि जो 10% ऑफ द डेली टाइम है वो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में देना चाहिए। बाकी वी हैव इनफ टाइम टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। सो आप ऐसे नॉट सेइंग भी 24 घंटे आप ये करें। यू लिव इन द वर्ल्ड, बट लीस्ट डिवोट 10% ऑफ द डेली टाइम टू योर सेल्फ, कि तुम्हारी अपनी डेवलपमेंट भी होनी जरूरी है। नहीं तो ये टाइम तो निकल जाएगा। और ये सुनहरा मौका है जिसमें कि हमें चांस मिला है अपने आप को जानने का, पिता परमेश्वर को पाने का। और ये हाथ से निकल गया तो फिर पता नहीं। इफ यू थिंक ऑफ 84 लाख जिया जून, अगर आत्मा सब में से जाके फिर यहाँ वापस है तो बिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। बिल्कुल। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच वी डोंट वांट टू मिस। और इसीलिए ह्यूमन बॉडी को रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया, क्योंकि इट इज ओनली इन दिस ह्यूमन बॉडी that we can connect with God. So let us make good use of this opportunity and take steps towards God. And somewhere, if the body has been given to us, let's also respect it. It's a gift. Yeah, it's a gift of the Lord. It's because we don't want to defile the body, and just like we don't want to defile the environment, evolution तो हमको बनाती है, and there's like all kinds of things that we need to be careful. God has given us this nature. God has given us the human body. तो इसको तो साफ रखना, पवित्र रखना बहुत जरूरी है. So we need to make sure that we take good care of the body, but even more important, we take good care of our soul, which is giving life to the body. क्योंकि अगर soul ही life नहीं देगा तो body तो deteriorate कर जाएगी. True. So both of those things have to go hand in hand. Maharaj ji, people say that success brings joy. Very often when you get successful, you find the joy is not there. So how do you view joy versus success? I think joy is in doing something to the best of your capability and not tying yourself to the results. We as human beings are tying ourselves to the result. We say, I studied very hard, I need to come first in the class. And if I came second, I'm devastated. Why? Because I trained myself that I have to come first. But we need to put in the best effort that we can, and then leave the rest in God's hands, and realize that maybe not everything is under our control. If something goes contrary to what we expect, let us not be disillusioned. Okay? But our effort should be the best one that we can put in. I think if we put in the effort, then the joy is in the means of getting to the goal, not in the goal itself. If the means to get to the goal have been done the best way that we can, then there's tremendous joy in being able to do whatever we can to get to the goal. But it's not like we tie ourselves so much to the goal that these means are forgotten. So happiness, I think, comes in realizing that we have done our very best, but if beyond that, if it was God's will for us not to achieve something, then that's okay too. So वो जिसको बोलते हैं ना, तेरा भाना मीठा लागे, sweet is thy will. वो कहना आसान है, करना मुश्किल होता है. But we need to train ourselves to get there. Those are good things for us to put into our life. Because when we have faith in God, we know कि जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए अच्छा है. क्योंकि हमारा ना विजन लिमिटेड है. बिकॉज वी हैव लिमिटेड विजन, हम उसी लिमिटेड विजन में देखते हैं कि क्या चीज अच्छी है. और गॉड्स विजन अनलिमिटेड. सो गॉड नोस हमारे लिए क्या ठीक है. तो अगर हम अपने आप को ट्रेन कर लें कि जो भी होता है वो हमारे लिए अच्छा है, देन आई थिंक विल बी हैप्पी ऑल द टाइम. एंड कहीं हम ये सोचे कि अगर हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया
तो वो बोल रहे हैं मूर्ख, मुझे मालूम है तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, क्योंकि जो जो हमारे लिए अच्छा है वो भगवान हमें जरूर देता है। एवरीथिंग दैट हैपेंस टू अस इज फॉर हाईएस्ट गुड। कई बार उस वक्त समझ नहीं आती, 5-10 साल बाद जाके समझ में आती हो ये ठीक ही हुआ था, बट उस वक्त वी आर सो फोकस्ड ऑन द रिजल्ट कि हम वो जो हमें मिला उसको एंजॉय नहीं कर पाते। महाराज जी, एक चीज जो बिल्कुल हमारे कंधे पे बैठी होती है, थोड़ा सा कुछ अनबन हुआ, गुस्सा फट से करके सामने आ जाता है, उसका क्या इलाज है? गुस्सा इंसान को तब आता है जबकि उसकी लाइफ में वो होता है जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लेट्स से आप ड्राइव कर रहे हैं जी, किसी ने आपकी कार को काट दिया, आपको एकदम से गुस्सा आ रही क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अब हमें और हमारा उस पर रिएक्शन बहुत जल्दी होता है, तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने आप को कुछ ऐसे समझाना है कि हमारा रिएक्शन उतनी तेजी से ना हो। वो कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू पुट योर माइंड इनटू गियर, कि थोड़ा सा अगर समय भी दे देंगे ना 1-2 सेकंड का, और इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, तब उस गुस्से को फिर संभाल सकेंगे। और अगर हम ये समझें कि आज हम इतने कनेक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे लोग अलग अलग कल्चर्स के हैं, बिजनेस के लिए इंसान मिलता है, वैसे भी ट्रैवल बहुत बढ़ गई है, यू रन इनटू ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, तो उसमें क्या है कि इंटरैक्शंस विद पीपल आर नॉट गोइंग टू बी लाइक वी एक्सपेक्ट देम ऑल द टाइम। अभी लेट्स से किसी कल्चर में होता है, किसी को आप मिलो तो वो गले लगा के मिलते हैं, उनको बड़ी खुशी मिलती है। और अगर कोई दूसरी कल्चर से उसने अगर हाथ शेक करा और आप उस कल्चर से जो पे गले मिला के मिलते तो आपको लगे ये तो मेरी बेइज्जती कर दी इसने। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मे बी उनकी कल्चर में ये चीज ठीक है, हमारी कल्चर में क्या है, एंड नॉट गेट एंग्री एट दैट। और मेरे ख्याल गुस्से को अगर हम देखेंगे तो गुस्सा क्या कहता है, वो ना अंदर से जलाता है इंसान को। तो हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि किसी भी चीज में जब रिएक्शन हो रहा है उसमें हम बहुत जल्दी से रिएक्ट ना करें, क्योंकि जैसे थोड़ा ठंडा होकर सोचते हैं तो देन हम उससे डील कर सकते हैं आराम से। और अपने अंदर भी गुस्सा दबा के नहीं रखना, नहीं दबा के नहीं रखना, बट वो जो गुस्सा है उसको देखो, वो इंसान दबाता है जो किसी चीज को फॉरगेट और फॉरगिव नहीं करता। सो वी नीड टू लर्न हाउ टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। अब जो फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटनेस इज गिविंग समथिंग, व्हेन वी आर फॉरगिविंग व्हाट वी डूइंग, वी आर गिविंग कंपैशन टू द अदर पीपल, वी आर गिविंग अंडरस्टैंडिंग टू द अदर पीपल, एंड वी आर गिविंग कि भाई आपको जो पनिशमेंट हम नहीं दे रहे। So we are giving these 3 things to the other person when we forgive them. What do we gain? Peace of mind, not getting burned down on the inside. And so forgiveness and forgetfulness are very important in life. As we pass through life, किसी भी स्टेट में forgive नहीं हम करेंगे तो हमारे अंदर वो एंगर बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये रियलाइज करना कि चीजें जरूर होंगी जो कॉन्ट्री टू हमारी अंडरस्टैंडिंग के हैं, और इस करके किसी को फॉरगिव कर देने में ही हमारी खुशी है। वो कहते हैं ना, फॉर एवरी 60 seconds ऑफ एंगर यू लूज 1 minute ऑफ हैप्पीनेस। Oh, for sure. No, I think you lose like a whole day. Whole day of happiness. क्योंकि you know what happens is the 60 minutes of anger is going to stay with you a long time. वो वहाँ खत्म नहीं ना होता। उसके बाद फिर you start to plan कि इसने मेरे को तंग करा, मैं इसको क्या करूँ, इसको क्या पनिशमेंट दूँ। So unless you learn the techniques of forgiveness, तो वो आपके अंदर बॉल करता रहता है और वो आपके बहुत और ज्यादा समय बर्बाद कर देता है। And as you said, meditation prepares, sets the base. As we go within, देखो, the realization that we are all one and the same, as that sets in, then if someone does something which you don't like, it doesn't bother you that much because let's say it's your own self. अभी कई बार क्या होता है कि जब आप बात करें कुछ खा रहे, आपकी जबान कट जाती है। जी जी। आप तो गुस्सा नहीं होते उस वक्त, मतलब जबान आपकी कट गई, खून निकल रहा है, खुद ने काटी, इस करके आप गुस्सा नहीं हुए। बट द सेम थिंग, एज यू मेडिटेट यू रियलाइज कि देयर इज नो अदर, वी आर ऑल वन एंड द सेम, इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन। लेट्स से ये बॉडी है, इसका हाथ भी है, लेग्स भी है, मिडिल टोर्सो भी है, तो हम तो नहीं ना करते कि हाथ पे गुस्सा आ गया तो हाथ को काट दिया, क्यों? हम कहते हैं बॉडी का हिस्सा है। सेम थिंग इज, एज वी मेडिटेट वी रियलाइज कि ऑल ह्यूमैनिटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ आवर ओन बीइंग। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं, और जब हम सब एक है रियलाइज होता है, फिर गुस्सा नहीं आता, लगता है गलती हो गई। और गलती तो इंसान से होती रहती है, और गलती हो तो इंसान को माफ कर देना चाहिए। That's so sweetly put, wonderfully. Maharaji, thank you so much. You came to our studio. For me, it's been 60 minutes of pure joy and learning. Thank you so much for coming to our studio.